Hello everyone and my dear students. I again welcome you all on my study channel based on 12th commerce topics. This is Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. Today I'll teach a topic from 12th commerce subject, that is OCM, Organization of Commerce and Management. My teaching will be based on chapter 1, Principles of Management. In the last session, we saw the meaning of management principles, and nature of management principles. We also saw how these principles are important at all the levels in organization. Now, let's see what will be there in today's session. Today we will see about Henry Fayol, his 14 principles of management, then principle of division of work and principle of authority and responsibility. Now let's begin with Henry Fayol. Henry Fayol is a management thinker who has given 14 principles of management. So he is Henry Fayol. He was a French mining engineer who turned a leading industrialist and a successful manager. He started his career as a mining engineer and rose to the position of the chief managing director. After conducting many experiments and observations in organization, Fayol proposed 14 principles of management. His principles are also explained in the famous book General and Industrial Administration, and because of his principles, he is also called as a father of modern management. Let's see some more information about Henry Fayol. He is a management theorist. He viewed management as a profession that can be trained and developed. He was the first person to analyze the functions of management. He is sometimes called as father of administrative management. Now, according to Fayol, efficiency alone is not enough to produce organizational success. Success also depends on treating workers well. Now, we will see the 14 principles given by Henry Fayol. His first principle is division of work. Second one is authority and responsibility. Then discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of personnel, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, and the last one is esprit de corps. So many teachers pronounce it as esprit de corps. So जो भी आपको suitable लगे उस तरीके से pronounce कीजिए. Now first we will start with our first principle, that is division of work. By the name itself you can understand division of work. To divide any work, किसी काम को बांटना, divide करना. This is the first principle given by Henry Fayol. Now as per this principle, the whole work must be divided into small tasks or units. And instead of assigning the whole work to one person, one task should be assigned to one person according to the capability, qualification and experience of the person. Fayol के मुताबिक पूरा का पूरा काम एक ही बार में एक इंसान को नहीं देना चाहिए. उनके कहने के मुताबिक उस पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेना चाहिए, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट लेना चाहिए और फिर वो एक एक इंडिविजुअल या एक एक पर्सन को सौंपना चाहिए. जैसे जैसे जिसकी क्वालिफिकेशन है, जैसा जिसका एक्सपीरियंस है, एज पर हिज कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, काम उसे डिवाइड करना चाहिए. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड, द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 groups of people and each group is having 3 employees headed by one in charge as per the potential, qualification and experience of the person.
जब हम काम को डिवाइड करते हैं तो काम बेहतर ढंग से किया जाता है और टाइम के अंदर काम अच्छे तरीके से पूरा किया जाता है. We will see more information about division of work in the next slide. According to Fayol, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operations, accounting and managerial. Fayol के मुताबिक हमें काम को डिवाइड कर लेना चाहिए, जैसे कि टेक्निकल का काम कुछ लोग संभालेंगे, फिनेंशियल कुछ लोग संभालेंगे, कमर्शियल कुछ लोग, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, ये सभी अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दिया जाएगा. सारा का सारा काम एक आदमी को नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज ही विल बिकम ओवर बर्डनड. ज़्यादा बर्डन उस पर आ जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, फ्रेमिंग का काम एक को दिया है, द साइडिंग वर्क इज गिवन टू सम अदर इंडिविजुअल, पेंटिंग is given to some other person, inspection and shipping. So all these work are distributed to different individuals. Second point says work should be assigned to the employees as per their capabilities and qualities. जिस एम्प्लॉय में जैसी क्षमता है, जैसी उसकी खासियत है, उस खासियत और उस पोटेंशियल, उस क्षमता के अनुसार ही उसे काम सौंपा जाना चाहिए. Then third, it helps in improving efficiency and expertise of employees. And the last one is it results into expected productivity and specialization. आप लोग इस ग्रुप पे देख सकते हो, इस फोटो में देख सकते हो लेफ्ट साइड में, यहाँ पर अगेन ग्रुप्स फॉर्म किए गए हैं. 4 एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप फॉर्म किया गया है और उनको अलग अलग काम डिवाइड किए जाएंगे, तभी काम वक्त पर होगा, अच्छे से किया जा सकेगा, एंड इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट डिविजन ऑफ वर्क. वी विल सी सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन डिविजन ऑफ वर्क. नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस पिक. इन हाउस हम घर पर देखते हैं फादर, मदर, सन, डॉटर, मेड, ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा. हम घर पर भी देखते हैं फादर अपना काम संभालते हैं, जैसे बाहर का काम सब फादर देखते हैं. मदर हैज़ टू सी ऑल द हाउस होल्ड वर्क इनसाइड द हाउस. वैसे ही बच्चे बाहर का देखते हैं. मेड का काम है घर की साफ़ सफाई करना या जो भी काम उसे सौंपा गया है. ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा. सो एवरीबडी इज़ असाइंड सम काइंड ऑफ वर्क. केवल एक इंसान पर बर्डन डाला नहीं गया है. वैसे ही हम फोटो में देख सकते हैं कि ईच वर्कर हैज़ अ स्पेसिफिक टास्क. किसी को साफ़ सफाई का काम दिया गया है, किसी को इलेक्ट्रिकल का काम दिया गया है, किसी को क्लीनिंग का काम दिया गया है. दिस इज़ कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क. वैसे ही अगर हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में देखें तो वहाँ पर प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ट्रस्टीज़, प्यून्स, क्लर्क, काम को इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. प्रिंसिपल इज असाइंड सम काइंड ऑफ वर्क, देन सम वर्क इज अलोकेटेड टू टीचर्स, देन स्टूडेंट्स. सेम अप्लाइज टू हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, नर्स विल लुक आफ्टर देयर वर्क, प्यून्स, वार्ड बॉयज़, केमिस्ट, पेशेंट एक्सेट्रा. नाउ केमिस्ट का काम है टू सप्लाई मेडिसिन्स. अगर डॉक्टर्स को बोला जाए कि आप जाकर केमिस्ट का काम करो, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज केमिस्ट की क्वालिफिकेशन, केमिस्ट का एक्सपीरियंस अलग है, केमिस्ट का रोल इज़ डिफरेंट, डॉक्टर का रोल डिफरेंट है. सो इंसान की क्षमता, क्वालिटीज़, एक्सपीरियंस, स्किल्स, टैलेंट के हिसाब से काम उसे सौंपा जाना चाहिए. वी कैन सी इन बैंक्स ऑल्सो, मैनेजर हैज़ टू डू सम अदर काइंड ऑफ वर्क. कैशियर हैज़ टू लुक आफ्टर कैश मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश. देन बैंकर्स, customer, accountant, guard, etc. Everybody perform their duty which are assigned to them as per their abilities. And the last one is, we can also see in offices, director, manager, HR means human resource, secretary, employees, labor, peons, clients. ये सभी लोग अपने अपने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करते हैं. सो दिस वॉज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ वर्क. काम को लोगों में डिवाइड करना so that the work can be completed in time or before time with more efficiency, and so organizational objectives can be accomplished easily.
Let's move towards the second principle, that is authority and responsibility. Now, what is authority and responsibility? We will see in this slide. According to Fayol, authority should be equal to responsibility. Now, very important thing over here is you must understand what is authority and responsibility. What is the meaning of both these terms are? Authority means power. किसी के पास किसी डिसीजन को लेने की ताकत होना, दैट इज अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटी, कोई काम करना, उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो फेयोल के मुताबिक अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ वन इज गिवन अथॉरिटी ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट फॉलोज एंड वाइस वर्सा. पर्सन विद अथॉरिटी शुड विलिंगली टेक रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम किसी एक इंसान को पावर देते हैं कुछ काम करने की, तो साथ साथ उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि वो उस काम को पूरा करे, बिकॉज वी हैव गिवन देम द अथॉरिटी, दैट पावर टू डू सम वर्क और टू टेक डिसीजंस. अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो द सेम पर्सन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. This means authority is equal to responsibility, and there should be proper balance between these two terms. Now we'll see next slide. Here in the picture you can see one person is holding authority. He has the power to take decisions as well as to command their subordinate or to give orders to its subordinates. The other picture you can see responsibility, where the subordinates are ready to take the responsibility. They are ready and they have accepted their task to finish particular thing given by its manager. So authority means right to take decisions. इस इंसान के पास पूरे पावर्स हैं कि वो कोई भी फैसला ले सकता है, and it is very necessary to get the work done from subordinates. पावर्स होना क्यों ज़रूरी है? जिससे हम अपने सबॉर्डिनेट्स से, हम अपने एम्प्लॉयज़ से, हम अपने कर्मचारियों से वो काम पूरा करवा कर ले सकें. अगर हमारे हाथ में पावर ही नहीं होगी तो हमारी कोई भी बात सामने से सुनी नहीं जाएगी. Nobody will obey our instructions. हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी बात क्यों सुनेंगे अगर हमारे पास पावर्स नहीं है तो? So that's why authority is to be given. We can see if a manager is given the authority, for example we take, अगर मैनेजर को अथॉरिटी दी गई है to complete a task within a given time, he should be held responsible if he doesn't complete the task in a given time. अगर किसी मैनेजर को हमने पावर्स दिए हैं कि ये काम, ये टास्क आपको पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना है, और अगर मैनेजर वो काम नहीं कर सका तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल मैनेजर होगा, ना कि वो सबॉर्डिनेट्स. बिकॉज हमने पावर्स तो मैनेजर को दिए थे कि वो काम करवा कर ले. अगर सबॉर्डिनेट्स ने उसकी बात नहीं सुनी या काम नहीं किया तो हम केवल और केवल मैनेजर को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, बिकॉज वी हैव गिवन हिम द पावर्स टू टेक डिसीजंस. नाउ इट वाज द होल एंड सोल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द वर्क, और अगर वो काम कंप्लीट नहीं होता है तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. Now manager should have proper authorities to take managerial decision. उसको decision लेने आने चाहिए. And the last one is there should be a balance between the two. They must go hand in hand. Authority and responsibility, they must go hand in hand. एक साथ रहना ही चाहिए. Now next we will see about difference between authority and responsibility. ये दोनों equal भी हैं, बट ये दोनों किसी न किसी मामले में एक दूसरे से अलग भी हैं. The first point below authority is it is the legitimate power of the manager to command his subordinates. Legitimate power means he has complete power or he has valid powers to command his subordinates or to give orders to his subordinates. इसका मतलब है कि authority अगर दी है हमने तो उसको पूरे पावर्स हैं कि वो डिसीजंस ले सकता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर भी दे सकता है. ही कैन ऑल्सो कमांड हिज subordinates. So authority is the legitimate power. Responsibility means what? It is the obligation of the subordinate to complete their assigned work. Now who are subordinates?
हम लोग बार बार ये वर्ड पढ़ते हैं सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबॉर्डिनेट? सबॉर्डिनेट मीन्स अ पर्सन who works under the instruction and guidance given by the boss. It means कर्मचारी जो किसी के अंडर रहकर काम पूरा करते हैं. Those people are called as subordinates. So responsibility means it is the obligation of subordinate. ये subordinates की ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है कि वो किसी दिए हुए काम को कंप्लीट करें. This is called as responsibility. सो अथॉरिटी मीन्स पावर, जिससे हम सामने वाले को ऑर्डर्स देते हैं. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनके दिए हुए काम को पूरा करें. नेक्स्ट इज ओरिजिन. अथॉरिटी अराइजेस ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द सुपीरियर. इट मीन्स अथॉरिटी हर किसी को नहीं दी जाती है. पावर्स हम हर किसी को नहीं दे सकते हैं. हम पावर उसी इंसान को दे सकते हैं जो उस पोजीशन तक पहुंचा है, जो हाईएस्ट पोजीशन पर बैठा है. तो जो ऊंची पोजीशन पर है उसे ही अथॉरिटी, उसे ही पावर्स, उसे ही राइट्स दिए जाएंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि इट अराइजेस ड्यू टू सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. यहाँ पर जिम्मेदारी कब बनती है? जब हमारे रिलेशन हमारे सुपीरियर के साथ होते हैं. जब हमारा कोई सुपीरियर हमें ऑर्डर्स देता है या कुछ देता है, इट मीन्स ही इज़ माई सुपीरियर. तब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क इन टाइम विच इज़ गिवन बाय अ मैनेजर टू मी. सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड इज़ फ्लो. नाउ अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इट मीन्स जब कोई हमें डिसीजंस देता है तो ऊपर वाला ही नीचे वालों को डिसीजन देता है. एक टॉप मोस्ट आदमी ही, सुपीरियर आदमी ही सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर्स दे सकता है. एक नीचे वाला आदमी ऊपर वाले को ऑर्डर कभी नहीं दे सकता है. बिकॉज इट फ्लोज फ्रॉम पोजिशन टू पोजिशन. टॉप मोस्ट पोजिशन वाला डाउनवर्ड्स या लोअर लेवल वाले आदमी को ऑर्डर्स देगा. नाउ व्हेन वी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. सबॉर्डिनेट कम्स ऑन द बॉटम लेवल. तो सबॉर्डिनेट की जिम्मेदारी, जो नीचे वाला है वो काम करेगा और वो अपनी जिम्मेदारी ऊपर वाले के लिए निभाएगा, अपने सीनियर के लिए निभाएगा. द फोर्थ वन इज पीरियड. It has longer period as compared to responsibility. Now this sentence means authority will always remain in the organization for a longer time. If one work is finished, the manager will be given another task to complete it by the help of other group of subordinates. इट मीन्स अगर मैनेजर का एक पर्टिकुलर टास्क फिनिश हो जाता है तो उसकी अथॉरिटी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है, उसके पावर्स वहाँ ख़त्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि उसे नेक्स्ट टास्क दिया जाएगा. फिर उसकी भी अथॉरिटी उसके पास है, वो उसे कंप्लीट करवा कर लेना है दूसरे सबॉर्डिनेट के ग्रुप से. फिर उसे तीसरा टास्क दिया जाएगा. ऐसे टास्क बढ़ते जाते हैं. इट मीन्स अथॉरिटी हमेशा बरकरार रहती है, लंबे वक्त के लिए बरकरार रहती है. जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इट गेट्स कंप्लीटेड विद द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, सो इट हैज़ द शॉर्टर पीरियड. जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा नहीं होता है. अगर 4 ग्रुप्स है सबॉर्डिनेट्स का, उन्हें पर्टिकुलर टास्क दिया गया एंड इफ इट इज़ फिनिश्ड, तो ऑटोमेटिकली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑल्सो बी फिनिश्ड. As soon as the work is finished, the task is finished, the responsibility of subordinates will also get finished. जब उनको नया टास्क मिलेगा तो उनकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी, और जैसे वो टास्क ख़त्म, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ ऑलवेज अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम. नाउ अथॉरिटी का नेचर क्या है? अथॉरिटी मीन्स इट इज़ अ पावर. जो हमने ऊपर पढ़ा, इट इज़ अ पावर, इट इज़ अ राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इट इज़ अ ड्यूटी. ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है, दैट यू हैव टू डू. एंड द लास्ट वन इज अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू अदर्स. Now this means authority of a manager can be transferred from one manager to another manager. अगर इस मैनेजर ने काम अच्छे से नहीं किया तो हम वो अथॉरिटी किसी और मैनेजर को भी दे सकते हैं, तो फिर वो अपना काम करेगा. तो हम अथॉरिटी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं. हम हमेशा एक ही मैनेजर को काम नहीं देंगे, बल्कि हम दूसरे मैनेजर को भी वो काम सौंप सकते हैं. सो इट कैन बी डेलीगेटेड. रिस्पॉन्सिबिलिटी में इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड. अगर वो काम पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट्स को दिया है तो वो उन्हीं को फिनिश करना है. ओनली दोज पीपल विल फिनिश द वर्क.
that particular task cannot be transferred from those subordinates to other group of subordinates. So responsibility cannot be delegated. Now let's see the last slide, that is examples. We will see some examples. Now the first example says the CEO of a company, CEO means Chief Executive Officer of a company, has doubled the sales target of the sales manager for the coming year. किसी कंपनी का CEO है जिसने अपने कंपनी में काम करने वाले सेल्स मैनेजर का सेल्स टारगेट डबल कर दिया है कि आने वाले सालों में तुम्हें अपना सेल्स टारगेट डबल करना होगा. These are the orders by a CEO to his sales manager. Now to achieve this target, इस टारगेट को पूरा करने के लिए authority for appointing necessary sales representatives, advertising according to the need, etc. shall have to be allowed. जब हम सेल्स मैनेजर को CEO ने ये काम दिया है तो सेल्स मैनेजर को ये अथॉरिटी भी देनी चाहिए कि वो अपने मुताबिक किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके या अपने हिसाब से किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को या मार्केटिंग एजेंसी को चुन सके. इस तरह की परमिशन ही शैल हैव टू बी अलाउड. दिस काइंड ऑफ अथॉरिटी शैल हैव टू बी अलाउड. इन केस दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड, अगर किसी मामले में ये अथॉरिटी मैनेजर को दी नहीं जाती है तो सेल्स मैनेजर वुड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट गिवन बाय हिज CEO एंड एग्जीक्यूट द वर्क इन टाइम. जब सेल्स मैनेजर को आप अथॉरिटी नहीं दे रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है कि वो काम वक्त पर हुआ या नहीं हुआ, तो CEO भी उसे जिम्मेदार ठहरा नहीं पाएगा. दिस इज़ कॉल्ड एज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसीलिए कहा जाता है कि अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन यू आर गिविंग पावर्स टू वन पर्सन, ऑटोमेटिकली द पर्सन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. एंड इफ यू आर नॉट गिविंग पावर्स तो ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट ask any question to the same person to whom authority is not given. Now we will see the last example under this. Chief Minister of a state is given the authority to look after the progress and development of his state. And if it is not done, the CM will be held responsible and accountable for his work. किसी राज्य का जो इंचार्ज होता है वो होता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर. उसे हम लोग ये पावर्स देते हैं कि वो अपने राज्य का डेवलपमेंट करे, प्रोग्रेस करे, विकास करे, अपने राज्य को ऊंचाइयों तक लेकर जाए. ये हमने उसे अथॉरिटी दी है. अब अगर उस राज्य में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है तो हम इसके लिए ज़िम्मेदार किसे ठहराएंगे? उस CM को ही ठहराएंगे. दैट पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क नॉट डन बाय हिम विद इन टाइम. क्योंकि हमने तो उसे पावर्स दिए थे बट काम नहीं किया, तो हम उसी से ये सवाल पूछ सकते हैं, ना कि हम जनता से बोलेंगे कि आपने मदद नहीं किया या आपने कुछ नहीं किया. सो दिस मीन्स अथॉरिटी जब दी जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑटोमेटिकली बन जाती है. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द थर्ड एंड फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. टिल देन टेक केयर and thank you so much.